Everyone, I'm Sweetie Gain and welcome back to my channel. Before I start the video, if anyone new here, do subscribe, like, comment and share. And let's start. Today we will know about some trigonometric identities. Okay, so now trigonometric identities we have: one, sine square a plus cos square a equal to 1. Number 2 is 1 plus tan square a equal to sec square a. And number 3 is cot square a plus 1 is cosec square a. Now we have three identities, and how can you remember this? Remember the ratios: sine, cos, tan and cot, cosec and sec, right? So in identities, in relationships, remember sine and cos. Sine and cos, sine square and cos, sine and cos have relation, sine and cos have relation. और अगर in number 2 1 plus tan square is tan के साथ 1 ऐड कर दो and cot के साथ 1 ऐड कर दो. So 1 plus tan square is sec square and 1 plus cot square is cosec square. Okay, sine, cos, tan, cot. Sine का reciprocal cosec and cos का reciprocal sec. So sine, cos, tan, cot, cosec and sec. Okay, तो sine and cos ऐड करेंगे तो रिलेशनशिप क्या होता है? sin square cos square is 1 and 1 tan के साथ 1 ऐड करो and cot के साथ 1 ऐड करो तो 1 plus tan square होता है 1 plus cot square. एंड इसका उल्टा लिख दो. इसका उल्टा क्या है? 1 plus tan के कोसेक है एंड कॉट के प्लस 1 के पास कोसेक. ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हो. नाउ हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैं एक दिखा देती हूँ और दोनों ऐसे ही होगा. ओके, सो फॉर नंबर वन इज साइन स्क्वायर a plus cos square a equal to 1. Write a right angle triangle. Okay, this is our right angle triangle and the right angle is B and the acute angle A and C. So from Pythagoras rule we can write AC is the hypotenuse. So AC square equal to AB square plus BC square. Okay, see, we have to prove sine and cos equal to 1. तो साइन एंड कॉस हमको ले आना है. तो साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है? साइन इज परपेंडिकुलर P अपॉन hypotenuse and cos is base upon hypotenuse. So now look at this AB. यहाँ पे AB क्या है? AB is the base. क्यों बेस क्यों है ये? बिकॉज हम लोग एंगल A के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं. सो according to angle A, the opposite side of the angle is perpendicular. So BC is the perpendicular. So P upon H is BC upon AC and cos is AB upon AC. Now look at this. हमारे पास AB है, BC है, but AC हमको नीचे में भी लाना है. अदरवाइज वी कैन फाइंड साइन एंड कॉस. सो अगर हम लोग AC से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा. हम AB और BC तो नहीं कर सकते, AC में भी करना पड़ेगा. सो बोथ साइड डिवाइड विथ
AC square upon AC, AB square upon AC प्लस BC square upon AC। यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइड विथ AC। मैं नहीं लिख रही बिकॉज मैं सिर्फ आपको प्रूव करके दिखा रही हूँ, नहीं पूछने वाला एग्जाम में। ओके, यहाँ AC स्क्वायर से करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर है। अगर साइन स्क्वायर लाना है तो दोनों पे स्क्वायर चाहिए ना, तो C स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। सो AC अपॉन AC होल स्क्वायर। AB एंड AC इज AB, देखो AB अपॉन AC इज cos A एंड साइन A। देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC के बदले में cos A, और स्क्वायर है तो cos A cos स्क्वायर A प्लस BC अपॉन AC। BC अपॉन AC के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन A। तो साइन स्क्वायर A, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये तो होल स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर है लिख सकते हैं हम लोग। और AC कैंसिल, 1 स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। So we can write sin square A plus cos square A equal to 1 root. We can find 1 plus sin square A equal to sec square A, cot square A plus 1 equal to cosec square A। अगर कोई प्रॉब्लम हो ये दोनों आइडेंटिटीज को लेके, so please let me know in the comment section. Okay, now let's move on to exercise 8.4. So in number 1, express the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in terms of cot A। So हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, sin A cosec A and tan A को cot A में लिखना पड़ेगा। ओके, so now start the answer। sin A को cot A के टर्म में बदलना है। so now देखो हम लोग यहाँ पे जो कोसेक A है वो कोसेक A ले आए हैं। ओके, बट यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, बट यहाँ पे कोसेक स्क्वायर नहीं है। बट हम लोग तो ऐसे ही कोसेक स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं ना, ऐसे ही तो स्क्वायर नहीं ला सकते। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं और साथ में रूट लगा सकते हैं। तो स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट विद ईच अदर एंड वी हैव कोसेक ए। समझो इस बात को, हम एक ही साथ में स्क्वायर लगा सकते हैं और रूट लगा सकते हैं, बिकॉज कोसेक यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या होता है कोसेक ए इंटू कोसेक ए। सो यू कैन पुट द 1 फ्रॉम रूट। इसका आंसर ये होता है ना कोसेक ए, इसका आंसर क्या होता है कोसेक ए। तो साइन ए था हमारा 1 अपॉन कोसेक ए, बिकॉज हमको क्या चाहिए, कोसेक स्क्वायर ए चाहिए। अगर कोसेक स्क्वायर ए नहीं लाएंगे तो हम लोग 1 प्लस कॉट नहीं ला सकते, और हमको क्या करना है, कॉट के अकॉर्डिंग बदलना है। ओके, कॉट पे बदलना है साइन को। तो कोसेक स्क्वायर उसके साथ रूट, मतलब एक ही है। ओके, तो कोसेक स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन रूट कोसेक स्क्वायर के बदले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया हमारा कॉट के रूप में साइन। नाउ सेक को बदलना है, सेक ए। ओके, सेक ए हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम आइडेंटिटीज सेक ए क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ओके, तो हमारे पास तो सेक स्क्वायर नहीं है, तो सेक स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अगर मान लो स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रूट लगाना पड़ता है ना। तो सेक ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड रूट 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट में तो ले आए हम लोग, पर हम ऐसे ही नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ पे तो एलसीएम होता है ना। तो एलसीएम कर दो,
एलसीएम में क्या होता है, इन डिनोमिनेटर वी हैव कॉट स्क्वायर ए, ऊपर कॉट स्क्वायर 1 इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 1, इट्स द आंसर। तो सेक को हम कॉट में ले आए। नाउ फॉर 10, सो 10 है तो इजी है, 1 अपॉन कॉट ए, बिकॉज 10 is the reciprocal of cot and cot is the reciprocal of 10। तो cot को हम 1 upon 10 में लिख सकते हैं और 10 को हम 1 upon cot लिख सकते हैं। Now number 2. In number 2, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. Okay. So sec A को छोड़ के जो भी trigonometric ratio है उसको हम लोगों को सेक ए में लाना है। ओके, फर्स्ट स्टार्ट विथ साइन। तो साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन का ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए निकालना है ना, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या है, यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर को कैसे कैंसिल करते हैं, रूट लगाकर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन के बदले में साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, एंड रूट 1 माइनस कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, सेक स्क्वायर ए। हमको तो सेक में ही लाना था, बट हम ऐसे नहीं रख सकते बिकॉज एलसीएम होता है यहाँ पे। तो रूट इन एलसीएम सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज द आंसर फॉर साइन। ओके, नाउ फाइंड आउट कॉस। कॉस तो इजी है बिकॉज कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, और सेक में तो निकालना है हम लोगों को, है ना। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस को हम 1 अपॉन सेक में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉस था, हम लोग कॉस को 1 अपॉन सेक में ले आए। नेक्स्ट इज tan। ये भी इजी है बिकॉज tan के साथ क्या बोला था, tan के साथ 1 ऐड करो और tan को स्क्वायर कर दो, tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे tan है, राइट, तो tan को रख दो यहाँ पे, tan स्क्वायर ए, 1 एक्स्ट्रा है तो 1 इस साइड ले आओ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल आउट करो, स्क्वायर मान लो नहीं है पे, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट। तो यहाँ पे tan ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, रूट sec square a minus 1. Okay, now for the cosec is 1 upon sin, right, and sin का क्या निकाला था हमने, sin था रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या है, देखो 1 अपॉन साइन है, इट्स लाइक 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सो यहाँ पे क्या होगा, और पलट देंगे तो सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए रूट के अंदर है, तो बाहर ले आएंगे तो क्या होगा, सिर्फ सेक ए, और यहाँ पे तो नहीं होगा, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फॉर नंबर 3, 1 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इवेलुएट करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा।
सो देखो 63 एंड 27 ऐड करोगे तो क्या होगा 90 एंड 17 एंड 73 इज 90. सो दोनों नहीं बदल सकते, एक को बदलना होगा. साइन को कॉस में बदलो, ए भी बदल सकते हो और ए भी बदल सकते हो, कुछ भी. और नीचे में भी एक कॉस को साइन में बदलना होगा. ए भी बदल सकते हो और ए भी बदल सकते हो. ठीक है, तो एक को बदल लेते हैं ऊपर और नीचे में भी. साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री इक्वल टू साइन स्क्वायर और साइन सेम. ओके, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन के बदले में कॉस लिख सकते हैं. साइन है तो कॉस लिखना है. कॉस ए 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन क्या है नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 को क्या लिख सकते हैं हम साइन 17 डिग्री. ओके, सो ये देखो ये तो आइडेंटिटीज आ गया. रिलेशन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इज 1 और नीचे में भी कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा. सो साइन स्क्वायर ए इज 1. 1 upon 1 is 1. This is the answer for number 1. For the number 2 we have sin 25 degree cos 65 degree plus cos 25 degree sin 65 degree. Okay, now एक को चेंज करना है. ओके, साइन को कॉस में बदल सकते हैं और कॉस को साइन में बदल सकते हैं. 25 and 65 is 90 degree. So now साइन 25 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 एंड साइन 65. कॉस को साइन में बदल लेते हैं. कॉस 25 क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री. ओके, it's equal to sin 90 minus a is cos 65 degree and cos 65 degree already हमारे पास लिख दो plus cos 90 minus 60 is sin 65 and we already have sin 65. cos 65 and cos 65 multiply करेंगे तो cos square 65 plus sin is sin square 65 and cos square 65 and sin square 65 is equal to 1. This is the answer. Now number 4. In number 4 we have 4 parts. In part 1 9 sec square a minus 9 tan square a is equal to what? Okay, so दोनों में देखो 9 है तो 9 कॉमन ले लो. sec square a minus tan square a. So now sec और tan में रिलेशन क्या है तो पता ही होगा. 1 plus tan square a is equal to sec square a. तो sec square minus tan square हम इसे कैसे ले आ सकते हैं. तो देखो 1 को रख दो sec square जैसा है, tan को इस साइड ले आओ माइनस tan square a. तो देखो sec square minus tan square a क्या होता है is equal to 1. So now 9 into 1 is equal to 9. साइड में लिखना पड़ेगा because और hence 1 plus tan square a is equal to sec square a. साइड में लिख देना. ओके, now for number 2. In number 2 we have 1 plus
tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta is equal to what? Okay. Now 1 plus tan theta is the sin theta upon cos theta. ये वाला प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होता है. ओके, प्लस एक का हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos theta. 1 plus cot theta is उल्टा cos theta upon sin theta minus cosec theta is the 1 upon sin theta. Now LCM करना पड़ेगा हमको. For LCM cos theta the LCM is in denominator cos theta and ऊपर cos theta plus cos theta 1 then sin theta plus 1. यहाँ पे क्या होगा sin theta is the LCM and the answer ऊपर sin theta plus cos theta minus 1. Okay, so now इस पोर्शन को I mean cos theta plus sin theta को A समझ लो and 1 को B, और यहाँ पे sin plus cos theta is A and यहाँ पे B. So from this A plus B and A minus B, देखो समझ लो A plus B है and A minus B है and दोनों में क्या है, दोनों तो मल्टीप्लाई में है. Okay, so from the rule from this you can write A square minus B square plus B and A minus B लिख सकते हैं A square minus B square. A is cos theta plus sin theta square minus 1 is B upon sin theta dot cos theta. Okay, यहाँ पे देखो ये तो और एक रूल हो गया A प्लस बी होल स्क्वायर. A प्लस बी होल स्क्वायर इसका क्या होता है A स्क्वायर I mean cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन sin थीटा cos theta. So cos square theta and sin square theta is 1 from identities. So 1 plus 2 cos theta sin theta minus 1 upon sin theta cos theta. 1 is out. Plus 1 minus 1. And now we have 2 cos theta sin theta upon sin theta cos theta. So sin theta and cos theta, sin theta and cos theta out. The answer is 2. For number 10, sec A plus tan A into 1 minus sin A. Okay. So now sec A and tan A को क्या लिख सकते हैं हम? Sec is the reciprocal of cos. तो sec A को हम लिख सकते हैं cos A and tan को क्या लिख सकते हैं sin A upon cos A. जैसे ऐसे लिख दो sin A 1 minus sin A. So for LCM cos is cos A 1 plus sin A and here 1 minus sin A. देखो 1 minus sin A क्या है? 1 minus sin A तो ऊपर है, इसके नीचे में क्या है? हम क्या लिख सकते हैं A प्लस बी एंड A माइनस बी. तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A and 1 square minus sin square is a cos square A from the identities cos A. How? देखो sin square A plus cos square A is equal to 1. So 1 minus sin square A 1 यहाँ पे है तो 1 sin square A को उस साइड ले आओ, तो यहाँ पे क्या होगा cos square A is 1 minus sin square A. So that's how 1 minus sin square A को हम cos square में लिख सकते हैं. ऊपर में 2 है और नीचे क्या है 1 घात में पावर में है, so एक कट जाएगा cos A. Okay, this is the answer. So 1 plus tan square A upon 1 plus
cot square A. It's 1 plus tan square A is sec square A, and 1 plus cot square A is cosec square A. Sec is the reciprocal of cos, so cos square A upon cosec is the reciprocal of sin, 1 upon sin square A. Okay, so हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं sin A upon cos A, इसका whole is tan, so tan square A. This is the answer for number 4. Thank you all for watching the video till now. Stay safe and healthy. See you in the next video. Bye bye.